Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is menstruation. जब ये menstruation की बात करते हैं तो हम इसमें चीज़ों को क्या करते हैं मेजर करते हैं. हमारे पास अलग अलग फिगर्स होते हैं, हम उनकी बाउंड्री और उनका एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर. तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. जब भी हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं. तो यहाँ पर पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज द सम ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स जस्ट लाइक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. So next we are having a quadrilateral. So again we are going to do the same part. The perimeter of quadrilateral is equal to the sum of all sides. Clear? Just like AB plus BC plus CD plus AD. Okay, next is that is square. The perimeter of square is sum of all sides, but there is one thing, the sides of square are all equal. So we can say that if we have to find out the perimeter of square, we can use the formula 4 into side. Next we are having rectangle. So here we are having rectangle and the opposite sides of rectangles are equal. So this side is equal to this side and this side is equal to this side. So we can say that if we are going to use the perimeter of rectangle ABCD, that is sum of all sides, we know that there are two equal sides are there, just like these two. So we are going to use a formula for here, that is the perimeter of rectangle is equal to sum of all sides into length plus breadth. Clear? Okay. So now we are having our exercise that is 10.1. And here we are having question number 1, find the perimeter of each figure. So let's pick one figure from here. Okay, here we are having a figure. So let's find out the perimeter. For perimeter, we are going to just add all the sides of the triangle. So we can say that there is sum of all sides. So here we are going to start from here, that is 8 centimeter, 4 centimeter, then 5 centimeter, then again 5 centimeter, and then 4 centimeter. So we are going to add them. So we are having, this is 10, and this is 12, and this is 16, and this is 26 centimeter. So this is the perimeter of this figure. Okay, now come to our next part. So here we are having question number 2, find the perimeter of the square whose sides are this. So let's pick one question from here, that is second part. Okay, we have a side, that is side equals to 245 millimeter. Now we are going to find out the perimeter. So here we are having perimeter of triangle equals to, that is 4 into side. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 तो 4 ही रहेगा, साइड कितना था 245 millimeter. Now we have to multiply these two values. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. So we are having 980 millimeter is the answer. That is a perimeter. Sorry, is a square na? Okay. So this is perimeter of square equals to 4 into side. Okay, next we are having question number 3. That is the perimeter of, find the perimeter of rectangles. Okay. Let's pick first part from here. So here we are having length and breadth. So we are going to find out the perimeter of rectangle. Okay, so the formula that is twice of length plus breadth. So we are having twice, that is 2, length is 18 and breadth we are having
14 centimeter. So now we are going to add these two values. This is 12 and this is 32 centimeter here. If we multiply, then we are having 64 centimeter. So this is our answer. Okay. Now come to question number 4. Let us find the side of the square whose perimeter is this. So we are having perimeter here. So we are going to take third part. So we know that the perimeter of a square is 4 into side. सो यहाँ पर आपके पास जो पेरीमीटर है दैट इज 94. 4 तो देखिए 4 ही रहने वाला है और साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है. तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर ओके तो ये मल्टीप्लाई में से जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड. दैट इज जस्ट लाइक दिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द साइड. तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे. दिस इज 2 एंड दिस इज 4 2 8 एंड 7. फिर से अगेन डिवाइड करेंगे. दिस इज 2 2 4 2 2 3 2 6 and this is 5. So we are having meter here, so we are going to write meter and this is our side. Clear? So this is our answer. अभी इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड फॉर्म टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं. ओके तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं. ओके नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. Just like the length of the side of a square field is 130 meter, and how much will it cost to fence the field at 11.50 per meter square? So हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड इसकी साइड हमें गिवन है और उसकी हमें बाउंड्री करनी है, फेंसिंग करनी है. ठीक है. तो उसकी कॉस्ट भी गिवन है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बाउंड्री की लेंथ निकालनी पड़ेगी. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द पर मीटर रेट. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास है जस्ट लाइक साइड ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 130 meter. Now we have to find out the perimeter. So we are going to write here that is perimeter of the square. The perimeter square is that is 4 into side. ओके तो हमारे पास यहाँ पर साइड है 130 मीटर. चलिए यहाँ पे कहेंगे 0 0 4 0 12 कैरी कम 1 4 in the 4 and this is 5. This is 520 meter as the answer. But we have to find out the cost of fencing. So cost of per meter fencing is 11.50. Okay. Now cost of 1 meter fencing, that is rupees 11.50. Okay. Now we have to find out the cost of 520 meter fencing is 11.50 into 520. Clear? चलिए तो हमें मल्टीप्लाई करते हैं. 11.50 into 520. तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी. दैट इज रुपीज 5980. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर? चलिए इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एरिया. देखिए पेरीमीटर में हमने बाउंड्री की लेंथ निकाली थी. इस बार जो हमारे पास सरफेस है हम उसका मेजरमेंट निकालने वाले हैं. जस्ट लाइक
इस फिगर में ये जो इंटरनल सरफेस है इसका एरिया क्या होगा वो हमें निकालना है। तो एरिया में हमें अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूलेज हैं। अगर आप रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ अलग फाइंड आउट करना है, जस्ट लाइक लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है एरिया अपॉन ब्रेथ। अगर आपको ब्रेथ निकालनी है देन आपके पास हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं। दैट इज ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 10.2 and here we are going to solve our question number 1, that is find the area of the rectangle whose length and breadth are given below. Okay, तो चलिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, तो हमने यहाँ से चूज कर लिया थर्ड पार्ट। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर लेंथ गिवन है दैट इज 7 मीटर एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अगर आपको उसको चेंज करना है तो हो जाएगा 3.50 मीटर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी फॉर्मूला या कुछ मेजरमेंट करेंगे आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो सेम यूनिट्स में होने चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए इससे यहाँ पे लेंथ देखेंगे दैट इज 7 मीटर, ब्रेथ देखेंगे 3.50 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो दैट इज 700, 7×5 = 35, 3 7 से 21, 22, 23, 24। So this is 24.50 मीटर स्क्वायर। सो आपका जब भी एरिया आएगा तो आपको उसको किससे पुट करना है, स्क्वायर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज गिवन बिलो। ओके, तो ये तो स्क्वायर निकालना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर निकालना है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज साइड इनटू साइड। देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। सो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 625 एंड दैट इज मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दो डेसिमल प्लेस हो जाएंगे तो हो जाएगा 6.25 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशन देख लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पिक कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे आते हैं, अ ब्लैक बोर्ड इज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर ब्रॉड, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर। देखिए पेंटिंग की कॉस्ट निकालने हैं तो अब देखिए पेंट हम बाउंड्री पे तो नहीं करते, पूरे सरफेस पे करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया है। तो चलिए पहले एरिया निकालते हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं लिखनी। से लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड so here we are having breadth of blackboard that is 1.5 meter. Now we have to find out the area. So we can say that area of blackboard that is length into breadth. देखिए लेंथ है हमारे पास। ओके, नाउ वी आर हैविंग लेंथ इज 2 मीटर एंड ब्रेथ वी आर हैविंग 1.5 मीटर। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 ज़ा 30, 3.0 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। चलिए आप स्टेटमेंट लिखते हैं फिर से, दैट इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज कितना गिवन था,
दैट इज 15 पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो यहाँ पे गिवन हमें ₹50। नाउ वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 3 मीटर स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू 1.5 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 15 रुपीज़ था ना, हाँ, दैट इज रुपीज़ 15 थ्री ज़ा 45 रुपीज़ एज आंसर। क्लियर? ओके, ओके, नाउ वी आर हैविंग अ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम में यहाँ पर आता है हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड एंड क्यूब। ओके, सो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम में देखेंगे आर 3D ऑब्जेक्ट्स, मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ऑफ ए ग्लास ऑफ दैट इज अ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, तो आप उसमें कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं, कितनी एयर आ सकती है, अब जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कितना स्पेस है, कितनी एयर आ सकती है, तो वो सब क्या होते हैं हमारी, सॉरी, वो क्या होते हैं हमारे वॉल। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्यूबॉइड है जिसमें 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं एंड क्यूब में होते हैं 6 स्क्वायर सरफेस। ओके, नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड शेप जस्ट लाइक सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड कोन। तो हमें जब भी वॉल्यूम निकालना होगा हमें 3D ऑब्जेक्ट्स का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट्स में कभी भी वॉल्यूम स्पेस नहीं होता। ठीक है, ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए, अभी आप वॉल्यूम देखेंगे तो आप हमेशा क्या देखेंगे, मीटर क्यूब में, जैसे क्यूब मीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब, हमेशा यूनिट जो रहेगी हमारी किस में रहेगी, क्यूब्स में। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे फाइंडिंग बाय वॉल्यूम, काउंटिंग क्यूब्स, 1 2, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 मीटर क्यूब। क्लियर? इस टाइप से आप यहाँ पे काउंटिंग करके भी निकाल सकते हैं, बट ये तो ओके। तो यहाँ पर आता है हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 10.3। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट्स आर गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और ये सेकंड पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ देखेंगे दैट इज 4 मीटर, ब्रेथ देखेंगे दैट इज 80 सेंटीमीटर, तो उसको चेंज करेंगे मीटर में हो जाएगा 0.8 मीटर। तो आप कह सकते हैं 0.8 मीटर एंड हाइट कितनी है, 1 मीटर। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 8 4 ज़ा 32 एंड देखिए आपने मीटर 3 टाइम्स रिपीट हुआ तो हो जाएगा मीटर क्यूब। ये हो गई हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो यहाँ पर है हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस, तो इनको बाद में करते हैं। अब यहाँ पे बोले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एड्स आर 10। तो अब हमें क्यूब का निकालना है, तो चलिए क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए भी हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो भी देखते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, दिस वन दैट इज 14 मीटर की और उसकी साइड। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि हमारे पास होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे देखें दैट इज 14 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू 14 मीटर। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, चलिए आप मल्टीप्लाई करके देखिए, दैट इज 2744 मीटर क्यूब। क्लियर? तो चलिए ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिससे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाए। तो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हमारे बहुत ईजी होते हैं, बस हमें लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास द बेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, that is 70 centimeter square. Then height is given, okay, height of cuboid
that is 5 centimeter. Then find its volume find out करना है. So we are having base area into height. तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो कुल मिला के सेम ही रहता है. तो यहाँ पर करेंगे 70 इंटू 5 एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. तो 5 is 35 and this is 0 centimeter cube as answer. Clear? चलिए. Okay student, thank you so much for listening us carefully. I hope आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आप लोग इसके प्रैक्टिस करनी है. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.